All right, and with that, it's time to move on to Ask the Pavilion. ये हैशटैग देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, हैशटैग Ask the Pavilion. आप देख सकते हैं, दिस इज़ राइट हेयर, हैशटैग Ask the Pavilion. और आपके सवालात का सिलसिला जो है वो हम शुरू करते हैं अब, ताकि आप लोगों के बहुत से जो सवालात हैं उनके जवाबात अपने पेरेंट्स से, सॉरी मैं ज़रा खोल लूँ, हैशटैग आ गया जनाब, मुबारक हो. All right, so first random question coming up. For Misbah sir, in your opinion, who is better player, Mohammad Hafiz or Shoaib Malik? ये बिल्कुल आए. टाइपो आपका नाम है, टाइपो TIME6ES4 टाइम्स, सॉरी टाइपो टाइम्स 4. इनका सवाल है मिसबाह उल हक आपसे. ये कौन सा सवाल है? It's right there. It's the first question right on top. I think एक तो कंपैरिजन करना नहीं चाहिए. ठीक है. एक मोस्टली टॉप ऑर्डर में खेला है और दूसरा मिडिल ऑर्डर में खेला है, तो बोथ आर एज इफेक्टिव अपने अपने नंबर्स पे. एज एन ऑलराउंडर मेरे ख्याल में दोनों की जो परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए वो ज़बरदस्त हैं. तो एक ही नंबर पे, अगर नंबर 5 पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो नंबर 5 के बैट्समैन के साथ तो आपका कंपैरिजन हो सकता है. ये नहीं हो सकता कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के साथ आपके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन का कंपैरिजन हो. तो इक्वली मेरे ख्याल में अपनी अपनी जगह पे दोनों ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त सर्व किया और परफॉर्मेंसेस हैं उनकी. बैटी कल्सी का सवाल है. बैटी कल्सी पूछती हैं आज पवेलियन में फ्रॉम वसीम. इन माय व्यूइंग पीरियड व्हिच इज एज लॉन्ग एज योर प्लेइंग पीरियड, सलीम मलिक वाज द ओरिजिनल फिनिशर ऑफ ODIs, won some unbelievable matches. Since finisher term didn't exist then, nobody named him that. Do you agree? If not, who was or is better than him? 100% agree with you, Betty. Apparently he's a guy, but it's fine. Salim Malik एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे. One of the few who played 100 test matches. I remember his one of the famous innings, 87 tour पे Calcutta against India, where he won Pakistan, so he got 70 or not out, where he won us a game from nowhere. India were cruising, we were losing wickets, but he just won us a game. One of the best players against spin bowling and an amazing cricketing mind. He was a great help to me as a captain, because my go-to guy was him if I had to ask any cricketing decision. So, all right, fantastic. Well done, Malik Sahab. That's right. रोहन प्रमोद मनूर, आपका सवाल है. Huge fan of the Sirs, Wasim Akram, Shoaib Misbah. Do you think with the evolution of T20 format, the beauty of Test and ODI cricket has been majorly impacted? Quality of cricket has been majorly affected. Truly admire your show, Pavilion B3. Great vibes. Regards from India. Thank you very much for your question. It's open for all of us to discuss. Gentlemen. Wakar, let's start with you. Ask the question, please. Again. Okay. So, इनका रोहन प्रमोद पनोर का सवाल है कि do you think that the evolution of T20 format has spoiled the beauty of Test and ODI cricket, has been majorly impacted because of that? The quality of the game has changed and is majorly affected. Do you agree? Do you don't agree? To an extent, I agree. You know, the old classical Test match cricket has changed now. Now it is fast-moving Test match cricket, okay, which is good in a way. पहले टेस्ट मैचेस जाते थे 5-5 दिन, अब तो चौथे दिन भी चला जाए तो प्लेयर्स भी तंग होते हैं और देखने वाले भी तंग होते हैं. क्रिकेट इज़ अलाइव स्टिल इन इंग्लैंड, पीपल लव इट देयर. ऑस्ट्रेलिया भी देयर आर वेरी फ्यू. इंडिया दे लव इट. पाकिस्तान में भी इफ़ यू प्ले इन अ स्मॉलर सेंटर्स दैट स्टिल पीपल लव. आई लव टेस्ट मैच क्रिकेट. इफ़ यू आस्क मी ऑल फॉर्मेट विच वन आई वांट टू टॉक अबाउट, which one I want to work on or play, test match cricket is ultimate for me. Yes, it has done a little bit, but that's a two different format. अगले आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि वो totally different set of teams, maybe different set of coaches, हर चीज़ separate हुआ है. Totally, everything will be different. All right. सैफुल्ला खान मरवत का सवाल आया है. मिसबाह आपसे है उनका सवाल. सैफुल्ला खान मरवत पूछते हैं, question for Misbah ul Haq. You were one of the few batsmen who could hit straight sixes at will. We have seen that too towards the end of your career. Yet you chose to bat generally slow despite so much criticism. What was the reason? I think the reason at that time वो आपके सामने है कि उस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह की डिमांड करती थी. नॉर्मली जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे कि स्कोर आपका हुआ है, यू नीड टू बेसिकली एक्सेलरेट, तो डिफरेंट आप माइंडसेट के साथ खेलते हैं.
और जब आपकी टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो और आपके 10 स्कोर या 15 स्कोर पे 3 आउट हो जाते हैं, दैन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द बेसिकली टीम्स रिक्वायरमेंट। तो कोई इस किस्म की सिचुएशंस में ऑब्वियसली आई हैव टू, और आई थिंक कि थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि आप बेसिकली किस टाइम पे खेल रहे हैं और आपकी टीम की ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है, कौन आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या है और कितना स्कोर आप डिफेंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में उस वजह से भी शायद उसमें चेंज आया। और जनाब अहमद इदरीस का सवाल है फ्रॉम द लेजेंड्स वसीम एंड वकार, आई एम इन ऑस्ट्रेलिया नाउअडेज फॉर द वर्ल्ड कप। Nice. Any recommendations for sightseeing and must-check spots? He narrowed it down. It's a continent. It's a huge place. So I don't know आप ऑस्ट्रेलिया में हैं कहाँ पे, फिर उस तरीके से आपको बता सकते हैं हम। We don't know which city you're in. काफ़ी सारी जगह का तो आपने बताया कि वहाँ की स्पेशलिटीज़ क्या हैं। Yeah, I've been lots of places and I explore when I go, especially the food places. चलिए जहाँ पे भी है वो डजंट मैटर, आप बता दें कुछ वैसे ही बता दें रैंडम की। I suppose if you are right now, पाकिस्तान का next match हमारा कहाँ पे है? Probably he's there. Adelaide is beautiful. I think it's a Rundle Street, just on the main street. All the top restaurants are there. And then if you want to go on the beach, it's about 20 minutes drive from the CBD, as they call it. They don't call it city center. They call it CBD. From there, it's about 20 minutes ride. And yeah, go have fun. Food is the best in the world in Australia. Even छोटे से ढाबे पे भी जाओगे, खाना आपको फ्रेश मिलेगा। All right, Janab. Sumit, Dr. Indiana, Sumit has sent in a question. Sumit, आप कहते हैं big fan of Alam B3. Thank you very much. Hosting one of the best. A fun rapid fire for me. Identify first cricketer to hit a 6 in a T20 cricket. He's sitting on my right, Wasim Akram. Did I? Fastest 50 in Test record holder is also sitting on my right, Misbah-ul Haq. First cricketer to play 100 T20Is, sitting on my left, Shoaib Malik. And the only cricketer to take 3 consecutive ODI fivers is also sitting on my left, Waqar Yunus. I hope you enjoyed your rapid fire questions. I bet you must have messaged Mazhar privately to send you the answers. Why would you say रट्टे देखे बगैर जो आंसर दे दिए? Am I right? यार आप पता नहीं क्यों खालपा में हर चीज पे शक करते हैं। अगर कोई भी इसमें से गलत है तो ये मजर नहीं बताए, और अगर ये सही है तो ये मैं था सारा। But thank you for your message, Sumit. We're going to take a break right here, but you've got this Ask the Pavilion hashtag right here. Send us your questions. We'll answer them right after these messages. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr. You're watching your Sports 10 Sports and the Airwise app. And Ask the Pavilion के सवालात का सिलसिला जारी है. And we're going to take another question that I have. This one is for Waqar and Misbah. It's come from Walter White. Question for Waqar sir and Misbah sir. What were your and team's feelings playing the test match against New Zealand in Sharjah day after the death of Phil Hughes in 2014? And were the bowlers hesitant to bowl bouncers in that match? Misbah, Waqar, this is for you. Look, we were not playing in that game, but I remember what happened. It was a very sad day. एक दिन मिस किया था, अगला दिन मैच नहीं हुआ था, एक ब्रेक ले ली गई थी उस दिन की, and it was very sad day, you know, to be very honest. और खेल I don't know what exactly was wrong, but then we played that match and we lost that game actually. Because nothing was going right. Mentally nobody was there, and I don't really remember कि bouncer का क्या था हुए या नहीं हुए, लेकिन I remember one. Remember they haven't bowled a single bouncer जब ये इंसिडेंट हुआ है सेम टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने एक भी बाउंसर नहीं, बट एक चीज कोई कैचिंग के फील्डर भी नहीं लिया। एक चीज मुझे वो वाला उन्होंने कहा कि लेट्स जस्ट टेक दिस आउट ऑफ द गेम। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, ब्रेंडन मैकलम नहीं खेलना चाहते थे वो टेस्ट मैच, वो ख़त्म करना चाहते थे, बट देन बिकॉज टेस्ट मैच हुआ एंड ही केम इनटू बैट एंड ही स्कोर्ड अ डबल 100 राइट एंड ही हिट सम सीरियस सिक्सेस। गुस्से में उसने मार के बुरा हाल कर दिया था। प्लेड रियली वेल दैट डे। ऑलराइट जनाब, आसिम का पैगाम है, आसिम ZX
उन्होंने लिखा है कि मेरी बेगम आप सबसे बहुत जेलस होती हैं क्योंकि मैं टी टाइम पे बहुत शौक से आपका शो देखता हूँ. Secondly, please share the moment when Wasim bhai and Wakar bhai were bowling against Sri Lanka, having 299 and 399 wickets, and there was only 1 wicket left in the innings. पहले सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ, दूसरे का वसीम भाई दे देंगे. पहले का मैं ये दे देता हूँ कि भाई अगर प्रॉब्लम हो रही है घर पे तो ना देखो शो. क्योंकि घर ज़्यादा ज़रूरी है शो से. अगर बेगम नाराज़ होगी और फिर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी, तो मेरी तो मशवरा यही है कि देख ले फिर या फिर चोरी देख ले. ये आप उनको एडवाइस दे रहे हैं. ये एक्चुअली एक्सपीरियंस से आया है, सो ये बात सुन लो. बहुत एक्सपीरियंस से विकी ने बात की. अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मुझे तो याद भी नहीं है कि ये सिचुएशन थी. मेरा नहीं ख्याल इसको भी याद होनी है. पर ऑब्वियसली जब मैं आई वाज ऑन 399 एंड आई थिंक आई हैव गॉट द विकेट. तो तेरा आपका भी उसी में हुआ था 300 विकेट्स. Same game in Sri Lanka. Yeah. The same test match? Same test. Oh, wow, I mean, I never knew that. I was concentrating on mine. So, probably. I remember, I think Mohammad Wasim took the catch and Russell Arden was the fielder. And I remember I got 70 runs. It was very, very hot. बड़ी गर्मी होती है श्रीलंका में. So, मैंने 70-72 करके आउट हुआ और स्ट्रेट अवे बॉलिंग आ गई. वो था भी लास्ट एन आवर और सो. तो मैं वो हाफ स्पाइक्स पहने तो उन्हीं में चला गया. मैं क्या स्पाइक्स नहीं पहन रहा मैं. So I usually used to bowl in half spikes. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. वकार, शोएब अख्तर ऐसे बॉलर्स को फ़र्क पड़ता था. स्पाइक्स इनके पूरे और नेल्स पूरे होने चाहिए. थोड़े वो यूज़ करके थोड़े रगड़े जाते हैं ना, वो भी नहीं. ये ब्रांड न्यू यूज़ करते थे आप मोस्टली. राइट, जवाद लड्डू का सवाल है. जवाद लड्डू कहते हैं, शुड वी पार्ट वेज विद द कोचिंग स्टाफ आफ्टर दिस वर्ल्ड कप रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट? Misbah? Who we had to decide. You can give your suggestion or opinion. Very, very difficult. Being वो दोनों देख के देख ली थी. सिंपल, जब आप कहीं पे होते हैं और वो एक जगह पे हम एज कोचेस काम कर चुके हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट कमेंट ऑन दैट. सो आई डोंट जस्ट वांट टू कमेंट ऑन दैट. Fair enough. आपने तो वही वो उस वाली बात की ना, शॉन टेट वाली. When they lose, you send me for the press conference. That was funny. That was very funny. That was really आपने funny. वो किया. जीशान का सवाल है शोएब मलिक आपसे कि how many years are you still going to play cricket? कितने साल और क्रिकेट खेलेंगे आप? जब तक मैं क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ, जब तक मुझे कैप्टन को छुपाना नहीं पड़ रहा फील्डिंग में, और जब तक मेरी जो भी परफॉर्मेंस हो वो टीम को फ़ायदा दे एंड ऑफ द डे, तब तक मैं कोशिश करूँगा खेलने की इंशाल्लाह. मैं सोच रहा था कहेगा कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तब तक और जब तक है जान में जान. मुझे कोई और काम ही नहीं आता ना वसीम भाई. So why not? तो ये अच्छा खासा तो कर रहा है तो काम. Why not? Now You're doing a great job. You're doing a great job. I have a question from Bring It On with triple N, not with one N. Oh, yeah. Question to Wasim Akram or all of us basically. Why do events like World Cups do not have alternative days for rain washout matches? They can eliminate the deserving teams. अगर यार ऐसा करेंगे तो फिर 3-3 महीने एक वर्ल्ड कप चलेगा. आई सपोज दिस इज फॉर एवरीवन. ये रूल्स जो पहले बने हुए हैं, ये लॉजिस्टिकली भी बड़ा Logistical, broadcast. मुश्किल है. सो मे बी दैट्स व्हाई वी नीड दिस T20 फॉर्मेट. जैसे शॉर्ट एंड स्वीट एंड एंटरटेनिंग है, वर्ल्ड कप भी शॉर्ट एंड स्वीट एंटरटेनिंग होना चाहिए. बिल्कुल सही. Maybe semi-finals, final. I उसपे think reserve day maybe होता है. उस पे आप रख लें. Otherwise, I think it'll be too long. फाइनल पे या तो है ये भी रिजर्व. कर सकते हैं जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट में होता है प्ले ऑफ, जो पहले 2 नंबरों पे फिनिश करती हैं टीम्स, उनको एडवांटेज होना चाहिए जैसे कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में. तो ये भी देखा जा सकता है. Eliminators, yeah? Yeah. वर्ल्ड इंफॉर्मेशन की तरफ से सवाल है कि जब शोएब अख्तर 150 पे बॉलिंग करते थे तब बहुत ज़्यादा डेडली लगते थे. आजकल के बॉलर जब 150 पे बॉल करते हैं तो इतने डेडली क्यों नहीं लगते? डेडली भाईजान जाग जाओ. नहीं मैं जाग रहे हैं. तो आपको ऐसा लगा जैसे आपको मुंह से डर्टी निकला है. डेडली. ओके. कुछ आपके दिमाग में तो नहीं चल रहा था उससे? नहीं. I was just trying to listen क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था जो मैंने क्वेश्चन रिपीट करवाया. क्या कहा था मुझे आपने कि रैंडम क्वेश्चन में समझ आया कितना मुश्किल काम में गए थे पढ़ना? मैं तो कहता हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता जो आप करते. You are the best in that, brother, to be honest. Sir, please. So actually
आई मीन आई थिंक द ऑब्जर्वेशन इज कि वो 150 वाले जो थे बड़े तेज लगते थे, अब जो है वो क्या वजह है? उसके दो रीजंस हैं। एक तो रीज़न ये है कि वो ही यूज्ड टू रन फ्रॉम फार, यू नो, तो एक टेरर सा आप बैट्समैन पे डाल देते हो, देखने वाले को भी एक लगता है कि ये पता नहीं क्या, यू नो, इज कमिंग रियली हार्ड एंड पुटिंग इन ऑल हिज एफर्ट। एक चीज़ दूसरी ये है कि उसका जो साइडवेज एक्शन था, इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू पिक द बॉल। मैंने नेट में भी खेला, आप लोगों ने सब में भी खेला, मुझे तो खैर इतनी नज़र भी नहीं आती थी बॉल उसकी। सो ही वाज रियली क्विक। और जब आप 150 टच करते हैं ना, या 148 भी मैं कहूँगा, उसके बाद जो एक किलोमीटर्स है ना, वो लिटरली वो ऐसे ही होता है जैसे किसी ने शूट किया बॉल, यू नो। तो he used to touch 156, 157, 160 तो किया ही उसने। 95, 96 से स्टार्ट होते थे। हाँ, so he was really quick and he was hard to pick with that action. So I have a question. So it's the action that basically did that, right? For Shoaib Malik from Muhammad Hamad, to question to all the panelists, especially Shoaib Malik as he's a current player, why we lack knowledge of match rules, like if the balls hit the stumps on a free hit, it ain't a dead ball. Second question, use of crease by bowlers has disappeared completely. Any reason for that? अब मुझे ये लगता है कि इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्लेयर कि आप जैसे ही रूल्स जब नए आते हैं तो आपको वो पढ़ने चाहिए, और ताकि आपको अवेयरनेस रहे टुवर्ड्स द गेम। इट्स नॉट जस्ट किस बुकलेट होती होगी ना रूल्स की, इंग्लिश में होती है, वैसे उर्दू में तो नहीं भाई होती। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन आवर सेल फोन। ठीक है, तो बहुत इजी है कि आप आईसीसी की उस पर चले जाएं, वेबसाइट पे चले जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप वहाँ पे रूल्स पढ़ लें। वैसे भी आपको रूल्स मिलते हैं। चेंज ऑफ रूल जब भी होता है तो वो आपको आके बताते हैं। जब भी लेकिन आपकी मैच रेफरी के साथ मीटिंग होती है तो वो आपको लेकिन वो बताते हैं और वो कैप्टन देते हैं। सिर्फ मैनेजर के साथ नहीं बैठता, वो तो कप्तान और मैनेजर। लेकिन वो कैप्टन और कोच जो भी कोई रूल चेंज हो जाता है तो वो टीम मीटिंग में सबसे पहले आप वो जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन वो बहुत बेसिक वाले बताते हैं, क्योंकि आप ऑलमोस्ट मैच पे जा रहे होते हैं, जिस वजह से वो आपको बहुत बेसिक वाली जो चीज़ें बताते हैं। लेकिन ये रूल्स ऐसे हैं कि ये अब आपको जैसे ही चेंज होते हैं, न्यू अमेंडमेंट होती है जब रूल्स में, तो आपको खुद प्लेयर को, अगर इंग्लिश में है तो आप जो है समझ लें, आपके पास एनालिस्ट है, तो ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक और चीज़ है कि ये रूल्स जस्ट सडनली नहीं चेंज कर देते। ये नहीं करते कि जी आज रूल आया तो जी 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या हफ्ते बाद। दे विल टेल यू कि जी अगर अभी नवंबर में आया तो दिल से कि जी ये रूल जो है ये फरवरी में इम्प्लीमेंट होगा, तो वो आपको दे गिव यू इनफ टाइम टू सॉर्ट ऑफ रीड इट। वो इशू कर देते हैं, बट जैसे कि आपको महीना 2 महीने देते हैं सो अंडरस्टैंड। अगर किसी ने नहीं पढ़ा या कोई मिस कर गया तो इट्स इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन ऑफ कोर्स इट्स अ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। That's why manager and such a huge sports staff is there to tell the boys before any tournament, sit down कि भी ये लॉ बदल रहा है, ये नया लॉ है। सारे तो दोबारा नहीं बताने होते, एक आधा लॉ ही चेंज होता है। राइट, मुख्तार हसन का सवाल है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन विल टेक बिफोर वी हेड इनटू द ब्रेक, एंड दिस इज फ्रॉम शोएब मलिक। शोएब भाई, क्या आप, मुख्तार हसन पूछ रहे हैं आपसे, शोएब भाई क्या आप इस बार भी पेशावर ज़ल्मी से ही खेलेंगे? मुख्तार, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्लेयर्स के हाथ में नहीं ये चीज़ होती। जैसे सॉकर की फॉर्मेशन है, या अगर किसी ने ट्रेड करना हो किसी टीम ने किसी टीम के साथ, तो आई गेस इट्स अप टू देम। जब एक दफ़ा वो फाइनलाइज हो जाए, फिर वो जो बॉल है वो प्लेयर के कोर्ट में आता है, एंड बट आई हैव बीन इंजॉइंग अ लॉट प्लेइंग फॉर ज़ल्मी, और मेरी पर्सनल ख्वाहिश ये है कि मैं ज़ल्मी की टीम से खेलूँ। एक्सीलेंट। बिफोर वी गो टू अ ब्रेक, लेट मी क्विक वन। पिछले 3-4 दिनों से जब PSL के ड्राफ्ट का अनाउंस हुआ है, सब कुछ अनाउंस हुआ, कराची किंग्स बड़ा वो कर रही थी ट्रेंड। सो आई लुक्ड, अभी हमें नहीं पता हमने क्या करना है। वी डोंट नो व्हाट वी गोइंग टू डू। बाबर जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। सो फेक न्यूज़ पे प्लीज़ बिलीव ना करें। बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि अभी हमें भी नहीं पता कि हमने क्या करना है। ब्रेक लेनी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। All right, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We are right now in Ask the Pavilion, taking your questions and answering them. एक जो सवाल है वो आज बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो हमारे स्टैट करते हैं मज़हर अरशद,
उनकी तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल आया है, वो सारे पैनलिस्ट से मैं ये करूँगा। उन्होंने ये सवाल किया कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का विमेंस क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की आयरलैंड क्रिकेट टीम की, ख़वातीन की क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। द लार्जेस्ट टोटल एवर पुट अप हमारी जो दोनों ख़वातीन ओपनर्स थी, उन्होंने दोनों ने सेंचुरीज जो हैं वो स्कोर की और 300 से ऊपर का टारगेट जो है वो आयरलैंड की टीम को दिया। और जो बिस्मा मारूफ हैं, जो हमारी कप्तान हैं वुमेंस क्रिकेट टीम की, उन्होंने अपनी बैटिंग पोजीशन सैक्रिफाइस की और दूसरों को जो है वो जाने दिया। तो मज़हर अरशद का ये सवाल है कि अगर हमारी ख़वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान जो है वो ये कर सकती हैं, तो क्या ये एग्जाम्पल नहीं है हमारे पाकिस्तान की जो मेन मर्दों की टीम है उसके लिए? मिसबा? बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मज़हर समझते हैं कि शायद कोई वहाँ पे ऐसी सोच है, कोई नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल में नंबर 3 पे अगर आपकी पार्टनरशिप है, चाहे वो आपका कप्तान है या कोई भी है, और आपके एंड के ओवर्स या मिडिल के ओवर्स चले गए हैं और आप समझते हैं कि कोई दूसरा बैट्समैन जाके ज़्यादा रन्स कर सकता है इस हवाले से, तो ज़रूर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट वकार, First of all, congratulations to our girls. Yeah. Well done, very very well done. And देखिए, सेक्रीफाइस करने से ही टीमें बनती हैं। जब आप सेक्रीफाइस करते हैं एज अ लीडर, आप जब सेक्रीफाइस करते हैं और करना आपको आता होता है, तो देन आई थिंक चीज़ें बदलती हैं, किस्मतें बदलती हैं, आपकी इज़्ज़त बढ़ती है। तो बिस्मा must congratulate you on the performances of the team and as a captain also. ऑलराइट, ओके। टीम का मकसद ही है सेक्रीफाइस। टीम गेम जहाँ आएगी सबसे पहले सेक्रीफाइस वर्ड जो है वो लगेगा। जो जिस प्लेयर को वो करना आता है उसको हमेशा सबके आगे रखना चाहिए। ऑलराइट जनाब, रफ़ई कमरुज़्ज़मान का सवाल है मिसबाह हक आपसे, और वो थोड़ी सी टिप्स आपसे मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आई एम अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड आई यूजुअली प्ले अ रिवर्स स्वीप अगेंस्ट रिस्ट स्पिनर्स, द बॉल इज टर्निंग अवे फ्रॉम मी। In ODI cricket, do you suggest I take this risk before I've crossed 50, or can also try this early on in the innings? लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उस पर। ऑब्वियसली आपने जब भी खेलनी है तो बिफोर जस्ट गोइंग इनटू द गेम और वहाँ पे अप्लाई करने के, आप एक तो प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा आपने किया, फिर आप कोशिश करते हैं कि कंपेटिटिव मैचेस यानी कोई टूर्नामेंट है या कहीं आप फर्स्ट क्लास या वनडे कहीं खेल रहे हैं, उससे पहले आप प्रैक्टिस मैचेस में उसकी कोशिश करते हैं। जब आप 100% श्योर हो जाएं कि हाँ अब मेरा कॉन्फिडेंस भी ठीक है, मेरी टेक्निक भी ठीक है, मेरा प्रोसेस भी इसका ठीक हो गया, एनी टाइम आई कैन जस्ट कनेक्ट दिस शॉट, देन इट डजेंट मैटर कि 50 के बाद आप मार रहे हैं या पहली बॉल पे ही मार रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा आप टाइम, पेस, पिच की देखते हैं, वो आपको कई दफ़ा 4-5 बॉलों में भी पता चल जाता है। इट बेसिकली डिपेंड्स कि आपको कमांड कितनी है उस शॉट पे। राइट। मोहम्मद जीशान का सवाल है वसीम अकरम आपसे कि सिंस रज़ाक, व्हाई हैव वी बीन अनेबल टू प्रोड्यूस अ फिनिशिंग ऑलराउंडर हु कैन बॉल फास्ट मीडियम? वी लॉस्ट प्लेयर्स लाइक अनवर अली, वी क्रिएटेड हाइप फॉर हमाद आजम। इफ गॉड गिफ्टेड प्लेयर्स आर नॉट अवेलेबल, देन व्हाई डू वी नॉट स्पेशली प्रिपेयर and give them at least a year? I can't answer this question. I'm not involved with the looking for a talent, upcoming talent. But you are spot on. We do need an all-rounder. Abdul Razak, Shahid Afridi. Obviously, we miss them. वो उनको आप 3 पे भी खिला सकते थे, अफरीदी ओपन भी कर लेता था, रज़ाक 3 पे भी कर लेता था, और दोनों अपने वनडे में 10-10 ओवर हर मैच में करते थे। ऑलराउंडर्स एंड T20 में तो ऐसे प्लेयर्स की बहुत ज़रूरत है। शुएब कासी का सवाल है। शुएब कासी कह रहे हैं क्वेश्चन फॉर द एंटायर पैनल वकार, एंड ही इज सेइंग दैट डू प्लेयर्स नो अबाउट देयर डाइट्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ डाइट्स ऑन देयर इंडिविजुअल बॉडी, for different players, and if yes, then why they get injured or why do they not remain fit? They don't know that. That is the problem. अगर उनको खुद अपनी डाइट को नहीं, ये बंदा बैठा है ना मेरे लेफ्ट पे, इसको अपनी डाइट का पता है, इज फिट, इज लुक्स लीन, इज गॉट पावर, ही कैन रन। आई मीन एट द एज ऑफ व्हाट 45, ही इज स्टिल डूइंग रियली वेल। 40 नहीं आज बात कर रहे हैं 40। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि
आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि मलिक ने यहाँ मेरा ख्याल है एक दफ़ा नहीं कुछ 6 दफ़ा आपको डाइट के बारे में बताया भी है, प्रोटीन किस तरह लेनी है या कार्ब्स किस वक्त लेने हैं. सो मेनी थिंग्स ही स्टोरी इज प्रॉब्ली the fittest we have got in this panel also, and of course he's still playing cricket, so he's your best man to tell you, and he's told us many times. The question is, Individual why bodies, can't diets for their individually they can learn? You can find out anything on your phone कि यार इसमें कितनी कैलोरीज हैं, इसमें क्या हो सकता है, किस में लेस कैलोरीज हैं, वो इसको पता है तो ये भी बताता होगा. गूगल ने जो चीज़ आसान की है, जो असल चीज़ दी है, वो तो कर लोगे तो ठीक हो जाएगा. सबसे पहले पता है क्या है, इसमें एक चीज़ करने वाली है कि प्रोफेशनल हैं, गेट इन टच विद देम. जैसे न्यूट्रिशनिस्ट है या ट्रेनर है. स्पेंड मनी ऑन योरसेल्फ. एग्जैक्टली वसीम भाई, अगर आपने कुछ अचीव करना है और एक प्रोफेशनल वाली लाइफ गुजारनी है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. और दूसरा एक सब उससे भी पहले जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपको एक टेस्ट बोलता है, वो आपको ये कहता है कि आप एक वो फूड का कोई जो है फूड इनटेक का आप एक टेस्ट करवाएं. आपकी बॉडी वो टेस्ट में ये बता देगी कि आपको किस किस चीज़ से एलर्जी है. इट्स कॉल्ड द डीएनए टेस्ट. मैंने कराया है. उसके बाद इतनी मोटी बुक मिलती है आपको, 34-35 पेजेस का एक पूरी इतनी मोटी रिपोर्ट बुक आती है. मिलती है. दैट डीएनए टेस्ट बताता ही है कि आपके लिए कौन कौन से फूड या फ्रूट्स are better for you. Everything. I had that report as well. I guess सबसे पहले न्यूट्रिशनिस्ट अच्छा वो आपको यही बताता है कि आप वो वाला टेस्ट करवाएं जो वसीम भाई ने बोला है, और उसके बाद आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा. हाँ, अगर आपको वाकई में कुछ अचीव करना है तो मारना पड़ेगा. अब जब हलवा पूड़ी या फलूदा आता है, आई स्वेयर फलूदा, मैं मतलब आई वुड डाई फॉर फलूदा, लेकिन बड़ा मुश्किल काम हो जाता है रुक जाना उस टाइम पे. कंफर्ट जोन से बाहर आए बगैर कुछ अचीव करना. सच्ची बात बताओ कि तुम्हें रोकना पड़ता है. You die for फलूदा. फलूदे के. You die for फलूदा. He kills the फलूदा. Yes, yes. और फायदा है कि एंड या तो मैं किसी चीज में आपकी said something very interesting. इसको क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है. एक्सीलेंस आपको कंफर्ट जोन से बाहर किसी भी चीज़ में, इन एनी प्रोफेशन ऑफ योर लाइफ, यहाँ बताया जाता है. यकीन करें, टीम में प्लेयर्स जो एकेडमी में आते हैं उनको बाकायदा फिजियो आपका और ट्रेनर रोज़ बताते हैं उनको इस चीज़ को कि ये चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खानी, लेकिन करना आपने, वो कहते होंगे करना आपने क्योंकि ज़ाहिर है आपके साथ हर टाइम तो कोई नहीं है ना. आप जब कमरे में आए हैं, आपने अगर खाना ऐसा ऑर्डर कर दिया है, आपने ऐसा खाना खा लिया है, आप ट्रेनिंग में वो चीज़ नहीं कर रहे जो आपको बताई गई, दैन सफ़र तो आपने करना है. प्लेयर को खुद इनिशिएट लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे टीम गेम है ना, किसी को वो खाना, अब 15 लोग हैं, किसी को वो खाना सूट करता होगा, किसी को नहीं करता होगा. तो इसीलिए आई गेस इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्लेयर टू फाइंड आउट कि क्या राइट ट्रेनिंग है आपके लिए, क्या राइट खाना है आपके लिए ऑफ सीजन में और ऑन सीजन में. देखिए बिल्कुल है. और मैं वसीम भाई को देखूँ कितना हमेशा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता हूँ आपको खाने के मामले में ना, कितने अच्छे तरीके बच रहा होता हूँ मैं. आज उसने पूछा है मेरे से आने से पहले अजमत ने कि जी आपको कुछ चाहिए. मैंने कहा आई एम गुड, आई जस्ट हैव कप ऑफ कॉफ़ी. मैं आके बैठा हूँ, इतने समोसे, कचौरियाँ, दही बड़े और साथ में जलेबियाँ और वो जैसे ही अंदर आ रहा था ना ये सारा सामान, मैंने आपको कहा है वसीम भाई, जब आप और मैं बैठे हुए थे, मैंने कहा वो फखर भाई आने वाले अंदर और वही हुआ. इधर समोसे आए हैं 35 और इधर से ये एंटर हुए. लेकिन वसीम भाई टू बी मैं कि बंदूक रखी और आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कितने मंगाए ने. लेकिन टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट वसीम भाई, चखया तुझे सारा कुछ. Yeah, I did. That's what I'm saying. It's difficult. I had half quarter जलेबी. I'm a positive influence. समोसा नहीं ट्राई किया, कचौरी पूरी खाई है, दही बड़े की बाइट भी लिया इससे. They were all delicious, no doubt. और ये उनका कंफर्ट जोन ये उससे बाहर आया. नहीं भाई, मेरा कंफर्ट जोन ये नहीं है. मेरा कंफर्ट जोन है जब मैं रिक्लाइनर पे बैठा होता हूँ. ये सब कुछ खाने के लिए मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलता हूँ जाके. और आज 8-10 दफा निकले हैं. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. We're going to see you on the other side.
Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr. You're watching A Sports, 10 Sports, and the Airwise app, and also on YouTube. We know that a lot of you around the world are watching us on YouTube, and you send us a lot of good comments and a lot of great questions. Thank you very much for all the patronage. Truly appreciate it. With me, of course, I've got Shoaib Malik, Ms. Paula Wakar, Yunus, Wasim Akram. I've got a question here for Ask the Pavilion. Binte Adam ka sawal hai Wasim Akram aapse. She says, I'm 38, female, and diagnosed with diabetes. Can you please share book names to read to help me, as I am married with no kids, and it will help me to plan my family? That's a very Binte? yeah. क्या नाम था? Binte Adam. Binte Adam, Assalamu alaikum. I think that's the name. Yeah. Books on diabetes, I don't know. आपको तो मिल जाएंगी. आप तो ऑनलाइन पे जाके आप देख सकती हैं. Nothing, कोई ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. डायबिटीज़ आपको डायग्नोज होगी. It's there. You have to fight it out. Please make sure your family is around you. Your husband will know कि आपको डायबिटीज़ है, और उसको भी एक दो लेक्चर्स में डॉक्टर के साथ जाना पड़ेगा. And if you can control your sugar levels, check your sugar levels regular basis, and of course exercise. जितनी भी आप कर सकती हैं, जितनी भी आप कैलोरीज बर्न करेंगी, उससे आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल रहेंगे. और प्लीज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि लिसन टू योर डॉक्टर. आपके पास बहुत लोग आएंगे, बहुत जानने वाले आएंगे, उसके पास जाओ, वो बंदे के पास इलाज है, वो नहीं है. इट्स साइंटिफिकली प्रूवन. व्हेन योर पेनक्रियास स्टॉप इन बिल्डिंग इंसुलिन, वो दोबारा नहीं रिप्रोड्यूस करते वो सेल्स. Right. एक चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि मेरी अम्मी को भी है. और ठीक है, मैं फिटनेस फ्रीक, आप कुछ भी मुझे बोल लें, जो मैंने शुगर इनटेक बिल्कुल ज़ीरो की, वो मैंने अपनी अम्मी की भी वजह से, कि क्योंकि सम टाइम अगर आपको घर में शुगर है और जो बाकी के जो लोग हैं वो सामने खाते हैं, तो जाहिर बात है कि बैड इन्फ्लुएंस हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट डायबिटिक लाइक मी अगर फ्रिज में पड़ी है एंड आई एम क्रॉसिंग something there, I've probably taken a nibble out of it without look देख तो नहीं रहा, but I'm quite disciplined. Now this can happen. Listening to that, I need to apologize. All the jalebis and faludas that I in front of me every time. I'm very sorry about it. But I'm always open to sharing it with you. You know that. I love you. लेकिन all right, we have another से दूसरे रूम में लगानी है ना? लेकिन लगानी है क्या चीज़? ये जलेबी फलूदा. मैंने अपोलोजाइज कर लेना. मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ, और आप बाद में कर लेंगे. बाद में कर लेंगे ना. आने दो. अच्छा ठीक है मिसबा भी, फिलहाल आने दो, शो ख़त्म करो, जल्दी जल्दी खाना खाइए. सवाल एक आया था, कल आया था, सॉरी वो मैं आई फॉरगॉट कि किसका है ट्विटर हैंडल पे, बट सवाल ये था वसीम वकार आपसे कि आप लोगों ने अपने करियर्स में कितने छक्के खाए? आई थिंक वन डे का पूछा था मैंने, मजर से पूछा था. मजर ने फिर हमें स्टैट भेजे. पहले तो उसने कहा कि आप 2000 से बाद के स्टैट्स नहीं हैं. देन ही इवेंचुअली आई डोंट नो फाउंड आउट वकार हैव bowled 666 overs in ODIs. I think that is he conceded only 28 sixes. That's it. Well done Vicky. Well done. 5 मैच नहीं मारने. आजकल तो 5 मैचेस किया, और मैंने 756 ओवर किए और मुझे लगे हैं 15 छक्के. 756 ओवर्स में? Yeah, that's what Mother told us. Well, that's amazing. I was a different time. Agabata, well done. Agabata, well done Agabata, both of you. एक इंटरेस्टिंग ट्वीट है, ये आबिद अली हमारे बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड क्रिकेटर हैं. इस आज के दिन पिछले साल वो 61 रन पे बैटिंग कर रहे थे जब उनको हार्ट अटैक हुआ था फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए. एंड आज फिर उसी टीम के खिलाफ उन्होंने 159 स्कोर किया है. एंड यू नो द ग्रेट रिकवरी फ्रॉम हार्ट अटैक. वेल डन. सो आबिद अली रियली वेल डन. ट्विटर पे किसी ने हमें एक टैलेंट की वीडियो भेजी है. ये वीडियो आप चारों को मैं चाहता हूँ कि आप देखें, एंड देन यू कैन कमेंट ऑन दैट. ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही है. प्लीज टेक अ लुक एट द टैलेंट दैट वी हैव. 4-year-old child. Oh my goodness, look at that footwork. Oh wow. Oh, and बुलाओ भाई. Look at this. Look at the balance, Misbah. उसकी हैंड्स देखें, लॉन्ग लीवर्स, हैंड स्पीड, एंड जो वो स्पेशली बड़ा शॉट मार रहा है. Oh, look at that. Oh, he holds straight bat. Look at this. Oh, look at this helicopter shot. Unbelievable. Oh, wow. Hopefully he'll play for Pakistan soon, inshallah. जिसकी हम बात करते हैं ना टैलेंट, ये है टैलेंट. अब इसको ग्रूम करना है. 4 साल का. If you catch them young, that's just spectacular.
दैट्स जस्ट एक वंडरफुल। रिक्वेस्ट है, उसको साथ में फील्डिंग भी कराइएगा थोड़ी थोड़ी जब बड़ा होगा तो। हाँ, थोड़ा फील्डिंग की भी उसको वो हम वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करते ना, हम बैटिंग बॉलिंग ही सोचते हैं। Yeah, that's true. There is a third discipline in the game, and that is fielding. With that, कल के मैच के ऊपर नजर डाल लेते हैं। कल एक ही मैच है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और वो मैच जो है इंग्लैंड बामुकाबला श्रीलंका है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत ही क्रूशल मुकाबला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुड वांट कि श्रीलंका ये गेम जीते so that they can qualify for the semi-final, and if England win this, they go to the semi-final, join New Zealand in the top spot on the table, and that's the end of the defending champion. So this is going to be a very crucial game. इसके लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कल सुबह 11:30 बजे बराह रास्त, right here on the ARY Zap app. And with that, our day comes to an end. Thank you, Shoaib. Thank you, Fakhr. Thank you, Wasim. And thank you, Misbah. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. And folks, take care of yourselves, stay safe wherever you are, and be kind to each other. Good night.